and we will go. Great. So we're good to go? Yeah. Okay, great. Have fun. Yes. And if anything, just leave a message in the chat box. If you have any doubts or anything, people. So yes, I think let's just. So हम शुरू करते हैं. Let people join if anyone coming. Okay. So hi everyone. You all can keep your mic on. There is no problem because the whole session we want to go interactive. If you are okay switching on, switching off, तो भी चलेगा. Or if you are comfortable keeping on, तो भी चलेगा. Just किसी को disturb ना हो उसका हम ध्यान रखेंगे. And people who just joined, I request that you give us your email ID because I want to share one worksheet at the end so you can practice. So people who just came, they can give your email ID on the chat. And if you're not comfortable sharing your email ID on chat, then find Tanishka. She's working with me. So directly you can send it to her also. So, okay. I welcome you all in the session. Hey, hi, Mani. My name is Paresh and I'm working in financial industry since last 17, 18 years in different segment. And as my moral duty, I started taking session talking about money since last 3-4 years. So I was generally taking this kind of session to adult parents and investors. But then I realized कि more or less होता ये है कि जो बचपन में हमने सीखा है वो चीजें आहिस्ता 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 लाइफ में रिफ्लेक्ट होती हैं कहीं ना कहीं. So I thought why not we make a session for kids, and I started researching about throughout the internet, books and all. So what I found is maximum literature, whatever is available on money, it's all parent centric or adult centric, people who are decision maker. So बच्चों के लिए साहित्य ज्यादा कहीं था नहीं. So मैंने कुछ किताबें पढ़ी और थोड़ा सब कुछ कलेक्ट किया and my experience. So whatever I have, I'm going to share. It's first time I'm talking with children or about the children, how 8+ people think about money or know about money. So I'm just requesting once again, people who just joined, please share your email ID on the chat box so we can share a worksheet towards the end of this seminar. And worksheet is a activity that you can take it forward whenever you want to do it. You can do it. So, are you all guys with me? You can unmute yourself and please talk. Yes, sir. Okay, great. Yes. Are there any kids listening? Any kids listening? No, not right Okay, now. okay. Parents are listening for kids, I believe. Okay. Yes, so, yes. Okay. So I request once again the entire session. I want to do it, give and take mode. So we will talk with each other and we will share with each other. So keep unmute and let's talk with each other on different questions. What I am asking, so we can know each other and lots of things we can to make it interactive. So very first question is the question for 1 CR. अमिताभ बच्चन वो लास्ट में पूछता है, मैं पहले पूछता हूँ. So you please unmute yourself and let's talk. So while talking we will understand more. Yeah, Dipti?
Yeah. Can you repeat the question? Sir, what is the question? Question is in front of you. You can see. Is money important? Why? Yes, for basic day-to-day life, money is important. For at Okay. least basic Basic needs. necessity needs. Yeah. Okay. Basic necessity. At Money least. is Yes. important. Yes. Okay. Who else? Let's share whatever comes to your mind and share your perspective. There is nothing right and wrong, and there is no marks. Till the time we get back the barter system, money is important. Okay. Okay. Good. 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 Anyone else? Bharti, you want to share anything? Vaishnavi? Jigar? Yes, sir. I just said about the barter system. Okay. Yeah. So Snehal, you want to share anything? No, as far as basic needs, even I think money is important. But Okay. the minimalistic approach is good about money. Okay. Okay. Money is just a means, not an end. Right. Good. Okay. So yes, I think everybody on this planet who are decision maker who are dealing with life, जो सन्यासी नहीं है, आई थिंक वो सभी लोग इस चीज को हाँ बोलेंगे, आई एम श्योर, बिकॉज इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोड ऑफ एक्सचेंज. सो ऑफ कोर्स मनी इज इम्पोर्टेंट. एंड उसके बाद के जो सवाल हैं वो सब लोग के अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं कि ज्यादा मनी, कम मनी, थोड़ा मनी, कैसे जीना. सो इट्स ऑल अबाउट द पर्सनल पर्सपेक्टिव अबाउट मनी. सो अगर बच्चे होते यहाँ पर ये सेशन में, तो आई थिंक कुछ और इनोवेटिव या कुछ और अपने पर्सपेक्टिव आते. तो सो बिकॉज ऑफ कंसिडरिंग दैट एज ग्रुप, आई केप्ट दिस एज अ क्वेश्चन. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रोल ऑफ मनी? Money is important, agreed. Okay. What is the role of money? It is a medium for exchange. Okay. Yes. That's the way we use it. Okay. So I'm just, one a statement, because the whole presentation made for 8+ age. So you might feel कि यार ये क्या topic है, कैसा है, but the consideration was 8+ age. Okay. So what is the role of money? Let's share. Vaishnavi, Bharti. Please. Then only we can buy things like sofa, chair, cushions, dresses. Wow. May I know your name, please? My name is Aday. My Pardon? mother is Bharati. What's? Mama. Yes. His name is What's your name? Sadev something. Sadev. Sadev, yeah. Okay. Great. Anyone else wants to share? Yeah, I can say, Please, like, please, I have a please. daughter of 2.5 years. So Okay. for her, the role of money is to buy toys and buy food for her. Like, we go to office or something. So it's like, yeah, you go to office, you will earn money and then you will bring things for me. Good. Please share. ये forum है ना, वो एक teacher बोल रहा है, लोग सुन रहे हैं ऐसा. This is not the forum for that. So let's just make yourself free and comfortable and just share with each other. So we know lots of things. क्योंकि उसको एक बार हम लोग ने बोला था कि वो ऑफिस नहीं जाने दे रही थी, लाइक उसके नानू को. तो बोले अगर नानू ऑफिस नहीं जाएगी तो पैसे कैसे कमाएगी और तेरे लिए टॉयज कैसे लाएंगे. सो अभी उसको पता है कि ऑफिस जाएंगे तो मनी विल कम एंड देन हर टॉयज और व्हाटएवर शी वांट्स उसको मिलेगा. Same thing I share with my 3-year-old son. Yes. Sir, I missed the answer from Satej. Satej ने तो बोला वो मैंने. Come again, sir. The kid Satej gave an answer, right? I missed that answer for some actually. Bharti, can your son share once again? இன்னைக்கு சொன்னது முன்னாடி சொன்னது சொல்லுங்களா? Role of money.
Yes, yes. Then which note is a but money we can buy food, etc. Other than Yes, yes. So earlier, what he said is कि अगर पैसा है, तो we can buy lots of things like sofa, cushion, and lots of things we can buy. That's what he shared. Right, Bharati? Yes, sir. Okay. So basically, if there were kids, so I would have not told them that role of money is not just buying household things, but everything, whatever we see around, we arrange all those, development of the country, city, and the society, whatever we see around us. So everything will be arranged because of money. So it's a very strong medium of exchange nowadays. Earlier, the history was different. So we used to exchange goods in terms of goods, but now there is a value of to every currency, and we exchange the goods and services through that medium of exchange. So role of money is not just buying some stuff for house. So whatever hospitality, entertainment, tourism, so everything we can buy through money. So there is a lots of important role in the whole economic system. So now let's go a little deeper into it. So what are the major activities that we do with money? One, you major, like you all people say that we buy things. What are the other major activities we do with money? We invest, save, Okay. So we invest. Okay. We pay taxes. Come again, Dipti. We pay taxes. We So pay taxes. because of that, we get to use the roads and stuff. Like Yes. government ko it goes. Yes, yes. Yeah. So we spend. We spend. Okay. Yeah, we spend on taxes. Okay. What else? Activities through money is Sometimes we basically don't spending even- on different side, household expenses, entertainment, asset building, Mm-hmm. everything. Okay. Yeah, which is on monetary terms, it can be done. Many Right. activities. Yeah. Okay. Yes, Neil, you were saying something. Sorry. You wanted to share something. We also donate money. Oh, wow, great. Yes, donate. That is also one of the kind gesture we do with money. Great. So there are four different aspects, or you can say the use we do with money. That is earning, spending, saving, borrowing. So whatever the money comes to us in however means, do we job or whatever means, if money comes to us, that is kind of earning. And however, in whatever means we spend or we give or we donate, so money goes, that is called spending. Saving and investing, so out of after spending, we save some kind of money. And in the scarcity or in kinds of development, we might need to borrow depending on the situation. So these are the four major activities that we do with money. Are we all with me? Are you agree? Yes, yes. Okay. Okay. Yes, sir. Yes. Do we have any Yes. other opinion like on this? Okay. So let's On these go. all, I think on these all the 4 points, everything comes in. Okay. So now let's एक topic के अंदर हम थोड़ा जाते हैं. Why one should earn and how we can earn. If earning is important, it is one of the important aspect. So why do we earn? Why one should earn? To And how we buy can money and then buy product for that money. Okay. Okay. Yeah, fulfill our needs.
to fulfill our Great. needs. Okay, great. Yeah, Bharti, your son wants to add anything? Sadev? Like going to job, we can earn. Pardon, come again? Going to job he can earn. Ah, okay, okay, okay. Shraddha, you want to add anything? Hello, Shraddha, can you hear me? Okay, so why one should earn, the one question, one answer we got, that to fulfill our needs and requirements, right? And what else? And how we can earn? Like earning also, you know, you can be being happy and earning. Like whenever you are earning, you are into some field, you must be happy. If you are not happy and you are earning, so that does not make sense. Like, Sense. Okay. yeah. So it is your hobby, or at least I'm speaking through child thing. If he is so happy into something and he goes into that field and earning something, so he'll be happy. Okay. Yeah. So my Basically, perspective, using one's please, hobby go ahead. for basically using one's hobbies and skill set in which they have interest can make them happy as well as earn money. Okay, okay, good. My perspective would be, what we through money, we buy affordability basically. So किसी के पास ज्यादा अफोर्डेबिलिटी होता है, किसी के पास कम अफोर्डेबिलिटी होता है, but through money we actually buy affordability, and we provide some kind of proper shelter, desirable foods, and needs, education, entertainment, and whatever we call it a life. हमको लाइफ को जिस तरीके से बनाना है, उस तरीके से बनाने के लिए whatever we buy and we have it, that is because of all these things, there is a value behind it, and हमें उसके लिए पैसा कमाना पड़ेगा, तब हम जाके ये कर पाएंगे. And how we can earn? So many people have a different mode of earning. So writer writes and their earning is different. Person who works for the factory, उनका earning different है. जो professionals हैं, like chartered accountant, doctor, उनका earning is different. Businessmen have a different way of earning. So I actually wanted to inform kids कि उनको क्या कहते हैं, वो सारा different kinds of जो earning है, what is the appropriate term for those things. So I actually wanted to inform them कि businessman का earning source क्या होता है. Profit. Okay. And come again. Yeah, profit. Yeah, profit. And professional people like doctor, chartered accountant, lawyers, and those kind of Salary. Professional fees. fees. Right. And what about labor? Labor charges. Wages. Wages. Yeah, yes, wages. right. Yeah, labor charges. Wages. So and writer, songwriter, book writer, author, music composer. Yes, Snehal? Royalty. Good. And what about kids? What they get? Pocket money. Pocket money. Right. वो भी उनका. अच्छा, bribe. अच्छा, who said bribe? Sadev said bribe, Bharti? Yeah, he was saying price that he gets for अच्छा, doing price. something. Yeah. Price. Sorry. मुझे लगा bribe. नहीं. Okay. So I wanted to, get inform them about the different
टर्मिनोलॉजी अलग अलग चीजों के लिए. So profit, salary, interest also we earn. We invest some money and we get interest. That is also a kind of earning. And rent also, if we have any property, तो वो भी एक प्रकार का earning है. Fees, royalty, taxes. Taxes is also one of the kind of earning. हमारे लिए नहीं तो गवर्नमेंट के लिए या किसी और we also collect taxes. बिजनेसमैन टैक्स लेता भी है और टैक्स पे भी करता है. तो एक का इनकम है तो किसी का एक्सपेंडिचर है. तो दैट इज द वे ये पूरा इकोनॉमी चलता है कि अगर मेरा कुछ एक्सपेंडिचर है तो वो किसी ना किसी का इनकम है, किसी का वो इनकम है तो किसी और के लिए वो एक्सपेंडिचर है. तो दिस इज द वे इट गोज हैंड इन हैंड. ओके, सो अर्निंग का टॉपिक यहाँ होता है. और इसके बाद स्पेंडिंग. वेयर डू वी स्पेंड अवर हार्ड अर्न्ड मनी? Maximum females are there, so I know what would be the first answer. Shopping. Shopping. Yes. And Yes. clocks. For female that is investment, so they will not say. Yes, yes. Okay. Where else do we spend our money? Shopping, investment, rent, Monthly groceries. Okay. Groceries monthly. Right. Yes, Sadev, you were saying something? Bharti, how old he is? 5.5. 5.5. Okay. Thank you so much, Sadev. You are making this the whole seminar live. So basically हम कहाँ स्पेंड करते हैं. हमें जो कुछ एरिया डेफिनेटली हमें पता होता है, वी पे टैक्सेस. कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो हमें पता नहीं होता है कि हम पे करते हैं, बट वी पे थ्रू डिफरेंट मीडियम. सो जब होटल में जाते हैं तो वहाँ अलग प्रकार का टैक्स होता है. हाँ, और हम मॉल में जाते हैं, वहाँ शॉपिंग करते हैं तो वहाँ अलग प्रकार का टैक्स होता है. जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जाते हैं तो we pay different kind of taxes. तो टैक्सेस तो डेफिनेटली हम पे करते ही है. और हम ग्रोसरीज में पे करते हैं, हम फीस पे करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वी कंसल्ट लॉयर और वी कंसल्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी. तो जो भी हम लोग ने अर्निंग के साइड पे जो एरियाज हम लोग ने लिखे हैं तो वो हमारा एक्सपेंडिचर भी है कहीं ना कहीं. जो मेड हमारे घर पे काम करने आती है तो हम उन्हें जो डेली जो मंथली सैलरी या वेज देते हैं तो वो भी है. हमारे पास कुछ स्टाफ होंगे काम करने के लिए. तो ये सारे जगह है वी स्पेंड. अब एक बिकॉज नाउ किड्स आर नॉट देयर एंड एवरी पेरेंट आर देयर, सो नाउ आई वुड लाइक टू आस्क वन एडिशनल क्वेश्चन. व्हाट इज अ स्मार्ट स्पेंडिंग? Investment. Okay, that is investment. I'm talking about spending, but a smart spending. Buying gold jewelry. Make a planning. Wow. Planning करना. Ratio of income versus spend that we do. Wow. Good. So, in my general seminar, I generally share this formula. In earlier days, people used to do income minus expenditure, whatever जो बचता था उसमें से हम सेविंग या इन्वेस्टमेंट का प्लान करते थे. बट अगर स्मार्ट स्पेंडिंग का बात करना है तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. और जो जिस तरीके से महंगाई, द इन्फ्लेशन, द वे इन्फ्लेशन गोज अप एंड अप and everything is getting costlier, so we need to change our formula that whatever we earn, whatever comes to our hand minus saving or investment, and whatever we left with that, उसमें से घर चलाना. That is the new formula. If you want to just make a note, please make a note कि ये formula करने से आपकी हैबिट्स सही होती जाएंगी and you will end up spending smart. तो जो मेरे पास मैंने कमाया है वो मैं खर्च करूं, उसके बाद सेविंग और इन्वेस्टमेंट का प्लान करूं, that is not right thing. But I should plan my investment and saving first after I am getting my earning. उसके बाद जो बचेगा उसमें से मैं स्पेंडिंग का सोचूंगा. So
because all adults are there, so I just wanted to share one thing here. Okay, so let's find out. परेश भाई एक क्वेश्चन. Please have your question, please. या आपने अच्छा बताया कि इनकम माइनस सेविंग्स और एक्सपेंडिचर होना चाहिए. But in Mumbai में usually expenditure very high, income is always just near to matching the expenses. So it becomes difficult really to go for the savings and savings का कुछ proportion मिल जाए, some ratio का कितना saving होना चाहिए. अच्छा, अभी एक कहावत हमने सबने सुनी होगी. दिस इज माय पर्सपेक्टिव. ओके, सो एक कहावत सबने सुनी होगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को बताई होगी कि जितने हमारे चादर उतने पैर लंबे होने चाहिए, फैलाने चाहिए. बट बराबर है, ये हमने सबने सुना होगा. Yes. कई बार वो हम लोग ने टॉन्ट में सुना होगा. मैं टॉन्ट को साइड में रखता हूँ, एक रियलिटी पिक्चर की बात करते हैं. तो मान लो मेरे घर पे जो मेड आती है काम करने के लिए, उनकी मंथली इनकम 10,000 है. मेरा डॉक्टर जो है उसकी मंथली इनकम 1 लाख रुपीज है. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू क्लास ऑफ सोसाइटी में जो क्लास बना हुआ है. तो जो 10,000 कमाता है वो उस हिसाब से प्लान करेगा, जो 1 लाख कमाता है वो उस हिसाब से प्लान करेगा. अगर आप मुझे फॉर्मूला पूछो, सो फॉर्मूला इज आपकी इनकम के 30 to 40% से आपका घर चलना चाहिए. वॉट एवर योर इनकम इज, इफ आई एम अर्निंग 100 रुपी, तो मेरा घर चलना चाहिए 30 रुपीज टू 35 रुपीज टू 40 रुपीज के बीच में. अब हम जनरल ये बात करेंगे यार मुंबई में ये है, मुंबई में वो है, तो हम कैसे चलाएं. मीन्स हाउ वी कैन मैच अवर हमें सेव भी करना है हमें. तो हमें कुछ ना कुछ नया रास्ता, कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव रास्ता निकालना पड़ेगा टू हमारे एक्सपेंडिचर को स्मार्ट एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करने का. अदरवाइज वो कभी भी नहीं होगा. और वो गैप जो है ना वो ऑलवेज बढ़ते जाएगा. एंड देन वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द मनी कम्स इन बिटवीन बोरोइंग. तो उसका कोई वो चक्कर का कोई एंड नहीं है. सो मेरा फॉर्मूला ये है, मैं जो एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि 35 से 35 to 40% is your household expense, 20% your fixed saving or investment, 20% your wants, जो आपको लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जो चीजों में आपका खर्च होता है वो सारी चीजों में. और उसके बाद 10% 20% जो बचता है उसमें से आप कुछ डोनेट करो या कुछ और चीजों में इस्तेमाल करो. सो 40 20 20 80 गया, और उसके बाद 20% बचता है, उसमें से आप 10% आप डोनेट कीजिए, 10% आप other things में you can utilize. But this is the general formula. If you can manage all these things, तो उसको प्रैक्टिस करने के 5 साल के बाद you will feel कि यार ये अच्छा है. It will not give you the idea in a very sooner, smaller time span, but longer term में आपको ये फायदा होगा. So यहाँ पर एक वीडियो में बताना चाहता हूँ सभी लोगों को. So keep your audio प्रॉपर, तो आपको सुनाई देगा. ये जो लेट्स फाइंड आउट नीड्स एंड वांट्स है ना, तो उसका बहुत एक अच्छा वीडियो एक संस्था ने बनाया है. सो आर यू ऑल रेडी टू हियर दैट वीडियो? इट्स अ 4-minute video and it's very very effective video. Yes. Are you all ready? Yes. And at the end of the video there is a small exercise. तो वो जब पॉइंट आएगा तब I will pause it and we will do that exercise together. Okay? Shall we do it? Yeah. Yes, sir. Okay. Okay.
I'm just taking little bit ahead because the voice is going ahead and image is going back. Sir, is there voice? Because I am not able to hear it. Yeah, we are not able to hear any voice. Only video is going on for us. Oh, really? Yes, sir. Yeah. Yes, we can only see the video, no voice. Oh. So अच्छा कोई ऑडियो आता ही नहीं है क्या? नहीं. No, नहीं. sir. No audio. No. My God. Okay. So can I just start the same in YouTube and restart it? Sure, sir. Yes, yes. हाँ क्योंकि कौन सा चलाना है? No. just give me 1 minute, huh? No. Can you see the video? Yes, but no voice. No voice again? Yes, yes. Can you hear it? I cannot hear. No. बाकी सबको आता है क्या ऑडियो अभी? No, no. Can't No. hear. Oh. So let's do one thing. I just explain what is there in the needs and wants video. Otherwise, बिना audio कैसे समझेगा? I don't know. So should I play just video because I don't know how to manage the sound now. Yes, sir. Fine. Play the video. Okay. In needs, they are saying कि needs are those जिसके बिना हम रह नहीं सकते. We cannot survive without. So food, shelter, and clothes we cannot survive without. So they are considering those are as a needs. Some example of needs: water, rain, sun, trees, school uniform, medicine, toothpaste, vegetables and fruits. These are the few examples of needs. So what are the wants? Wants वो है जो हमें लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हम यूज करते हैं, बट उसके बिना हम जी सकते हैं.
These are all the examples they are giving for wants. He's a Praveen. Praveen is demanding all these things to your mom, to his mom. मॉम उनको कहती है कि जो जो आपके पास पुरानी चीजें पड़ी है उसका लिस्ट बना लो पहले. He made a list. प्रवीण की नीड्स क्या है एंड वांट्स क्या है. Now we understood the difference between needs and wants. Sometimes one person's want is another person's need. प्रवीण का फ्रेंड केविन वो स्कूल की क्रिकेट टीम में है. So branded cricket bat for Kevin is a need, and the same branded costly cricket bat is for Naveen is a want. Now everyone, this is an exercise. You can participate. यहाँ पर few images will come. You want to identify is there that product is a need or a want. Study table. It's a need or a want? Study table. Want. Okay. School shoes. Want. Need. Okay. We are homeschooling parents, so want. Okay. Designer dress. Want. Electricity. Need. Okay. Branded jersey. Want. Water bottle. Want. LPG gas. Need. Vacation. Want. Need after corona. So जैसे वो एग्जांपल में कहा किसी का नीड किसी का वांट हो सकता है, तो इट कैन बी कम किसी का नीड है तो किसी का वांट भी आ सकता है. Right. म्यूजिक डाउनलोड्स. Want. एक्सपेंसिव फोन. So basically ये नीड्स एंड वांट्स का एक्सप्लेनेशन था, और ये 8 साल के बच्चों के पर्सपेक्टिव से मैंने तैयार किया है, तो उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि ऐसी कौन सी चीजें हमारे घर में हम खरीदते हैं जो नीड्स में है और कौन सी वांट्स में है, और इसका आगे जाके फायदा क्या होता है, वो उसके टॉपिक पे अभी हम आएंगे कि अगर ये डिफरेंस करना क्यों जरूरी है और उसका फायदा क्या होता है. Okay, there is one more distinguish between expenses. जो हमने needs और wants का देखा, तो वहां से हमें clearly समझ में आ जाता है कि there is a two type of expenses we do, some of the needs and some of the wants. अभी इसमें right or wrong, there is nothing right or wrong. It depends on the person's
choices and the family and different लोगों का different perspective of life होता है. But यहाँ पर ये जो types of expenses है वो भी देखना बहुत जरूरी है कि some of the expenses are fixed expenses and some of the expenses are variable expenses. अभी ये fixed और variable में भी ऐसा होता है कि कुछ चीजें wants में होंगी, कुछ चीजें needs में होंगी. So again there is a different people, different family, different choices. जैसे जिगर भाई ने कहा कि हम लोग अनस्कूलिंग पेरेंट है तो हमें स्कूल शूज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. बट फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग आपको देना ही देना है. आपका बिकॉज ऑफ दिस कोरोना सिचुएशन कुछ लोगों का इनकम बहुत कम हो गया, कुछ लोगों का जॉब चला गया, कुछ लोगों का बिजनेस बहुत तकलीफ में आ गया. बट इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आपको भरना ही पड़ेगा. गैस, कुकिंग गैस के बिना हम खाएंगे क्या? मोबाइल रिचार्ज तो करना ही पड़ेगा. घर के अंदर ग्रोसरी की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. तो ये सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं. तो ये फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस समझना बच्चों के लिए क्यों जरूरी है वो टुवर्ड्स द एंड आहिस्ता आहिस्ता समझेगा. वेरिएबल एक्सपेंसेस का ऐसा है दैट दोज आर द फ्यू एक्सपेंसेस पॉसिबली यू कैन होल्ड, और ये हर बार आएंगे ही आएंगे ऐसा नहीं होता है. It may come, it may not come. Computer repairing, if your computer is in warranty, repairing नहीं आएगा. नया कंप्यूटर है 2-3 साल रिपेयरिंग नहीं आएगा. So किसी का रिपेयरिंग आएगा, किसी का नहीं आएगा. मेडिकल रिपोर्ट्स इज ऑल्सो देयर. बर्थडे पार्टीज, अगर जिस महीने आपका बाकी का दूसरा एक्सपेंसेस ज्यादा है तो उसमें बर्थडे पार्टी का एक्सपेंसेस हम कम करते हैं. जनरली जिनका बर्थडे जून महीने में स्कूल के आसपास आता है तो पेरेंट्स कहेंगे तुम्हारी स्कूल की फीस भरूं या बर्थडे पार्टी में स्पेंड करें. तो ऐसा जनरली वी डिफरेंशिएट. तो ये भी बच्चों को जानना बहुत बहुत जरूरी है. ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ और जो ये पूरे प्रेजेंटेशन में हम देख रहे हैं तो वो सारी चीजें आपको जब वो वर्कशीट आपके पास आएगी ना तो उसको एक्सरसाइज करने में आपको बहुत फायदा होगा. और people who haven't shared their email ID on the chat, please share your email ID. जिन्होंने नहीं शेयर किया है, Shraddha, I think you came left and you are still there, so please share your email ID so we can share that worksheet with you. So now a very important question. Once again, let's start talking and sharing with each other. Why we need to save and how we can save. स्नेहल, दीप्ति, जिगर भाई, भारती. So we need to save for emergencies. आवाज कट हो गई, क्या बताया आपने? Emergencies. Okay, emergencies, good. Yes. Yes. Come again, Dipti. What did you say? Investments also, like a Okay. Mediclaim or something, every monthly or yearly investment. Okay, So we good. need to save. Yes. Save to meet our future expenses. Okay. This is the answer why we need to save. And Dipti, आपने जो कहा वो how we can save ये कहा. Okay. So why we need to save? एक बहुत बड़ा राक्षस दिन रात हमारे पीछे पड़ा है. That is called inflation. लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो महंगाई. जो चीज लास्ट ईयर 100 रुपए की थी वो आज 105 रुपए की है, 102 रुपए की है या 120 रुपए की है. तो लेकिन वो मेरी नीड में है तो मुझे खर्चा करना ही पड़ेगा. तो मेरी इनकम नहीं ग्रो हुई है बट इन्फ्लेशन ग्रो हुआ है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है. तो मुझे वो इन्फ्लेशन को मीट करने के लिए कोई ना कोई ऐसा फंड मुझे क्रिएट करना ही पड़ेगा. कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, जैसे स्नेहल ने कहा, नहीं सॉरी दीप्ति ने कहा कि मेडिकल एक्सपेंसेस अगर कुछ आ गए तो वी नीड टू हैव सम काइंड ऑफ फंड. स्नेहल ने कहा कि इमरजेंसी फंड. तो कोई इमरजेंसी इवेंट अगर हमारे घर में अगर होती है तो अगर हमारे पास अगर सफिशिएंट फंड है दैट मीट दैट इमरजेंसी तो हमें इतना दिक्कत नहीं होता है.
एक ओपिनियन, एक जस्ट ओपिनियन शेयर करना चाहूंगा। अभी बिकॉज ऑफ ऑल दिस पेंडेमिक सिचुएशन देयर आर लॉट्स ऑफ फैमिली गो वेंट इन अ वेरी ट्रबल सम पीरियड कि इनफ्लो बंद हो गया या कम हो गया या जीरो हो गया, लेकिन आउटफ्लो एज इट इज है। तो जिन जिन लोगों के पास फंड का अरेंजमेंट किया हुआ था उनको तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जिनका फंड का प्लानिंग अगर अच्छा नहीं किया था उन सभी को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। तो एक एनालिसिस और एक ओपिनियन पे मैं ये सारा सब जब देख रहा था, पढ़ रहा था कि लोगों का फाइनेंशियल प्लानिंग कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है। ये 3-4 महीना हम अगर हमारे इमरजेंसी समय में अगर हम अपने आप का घर नहीं चला सकते, सो देन देयर इज अ इश्यू, देन देयर इज अ क्वेश्चन कि वी नीड टू रिविजिट अवर प्लानिंग। अगर 3 से 4 महीना चले, इतना फंड हमारा इमरजेंसी पॉकेट में होना चाहिए, लिक्विडिटी पॉकेट में होना चाहिए। सो इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन सिचुएशन लाइक दिस, आई प्रे टू द गॉड कि ऐसी सिचुएशन कभी ना आए किसी के लाइफ में, बट इफ कम्स तो हमारे पास कुछ ऐसा प्लानिंग होना चाहिए, इमरजेंसी फंड, सो वी कैन सर्वाइव नाइसली एंड हैप्पीली इन दोस काइंड ऑफ सिचुएशन। अभी हाउ वी कैन सेव में बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, बहुत सारी नीड के हिसाब से आप अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। आपका रिस्क लेवल कितना है, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, रिस्क लेना चाहते हो ले सकते हो, या कितना अमाउंट आप रिस्क ले सकते हो, ये सारी चीजों पर निर्भर करता है आप कहाँ सेव करें। टिपिकली बैंक एफडीज, बैंक में रिकरिंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस, हालांकि ये तरीके थोड़े आउटडेटेड हो गए, ज्यादातर लोग यहाँ सेव नहीं करते हैं, बट स्टिल इट इज ऑप्शन। फिर पीपीएफ, क्या क्या ऑप्शन आपको ध्यान में है दीप्ति, जिगर भाई, भारती, स्नेहल? PPF, LIC, mutual funds. Okay. Post office, you said. Yes. Equity. Okay, good. सुकन्या समृद्धि. Okay, Sukanya Samruddhi, right? Corporate FD. You can invest in FD, shares too. Yes, shares, equity, right? Yeah, the Gold bonds. Gold bonds, yes. Property. NCDs, properties, gold. Okay. So, since kids are not, many kids are not and every adult are there, so let me just, go little bit from your side कि इसमें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ये क्राइटेरिया हमें आइडेंटिफाई करना होगा पहले। दिस इज द वे आई जनरली एडवाइज टू माय क्लाइंट्स एंड माय फैमिली मेंबर्स कि फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या, कैसे आपका सेविंग का प्लान बन सकता है। आप अपने फ्यूचर को इस तरीके से प्लान कीजिए कि शॉर्ट टर्म की मेरी नीड्स क्या है, मिड टर्म की नीड्स क्या है और लॉन्ग टर्म की नीड्स क्या है। आई एम टॉकिंग अबाउट नीड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वांट्स, क्योंकि जो भी आप प्लानिंग करते हो आप नीड्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे, नीड्स को प्लान कर सकते हो, वांट्स को कोई प्लान नहीं कर सकता है, अनलेस कि अगर आप बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हो अपने वांट्स को भी एंड यू कैन डिसिप्लिन योरसेल्फ, देन इट्स गुड। तो वो एक चार्ट अपना रेडी होना चाहिए कि ये 3 साल के बाद मेरा बेटा या मेरी बेटी हायर एजुकेशन में आने वाले हैं, फॉर एग्जांपल कुछ सालों के बाद मुझे ये एक्सपेंसेस आने वाला है, या हायर एजुकेशन में आने वाले हैं और हम लोग को स्कूल चेंज करना है। ऑल व्हाटएवर इज देयर, आपकी फैमिली में डिस्कस करने के बाद एक लिस्ट बनता है, उसमें से आप शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म डिवाइड कर सकते हो, and then accordingly you can choose the product. So in my principle, I whenever I share in my seminars, so product cannot come first, planning comes first, then the product. तो जो भी आप प्लान करना चाहते हो, प्लान 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बैठ के सारा प्लान करिए। एडवाइजर की भी हेल्प लेना चाहते हैं तो एडवाइजर की भी हेल्प लीजिए, प्लान एवरीथिंग एंड देन गो फॉर अ प्रोडक्ट। When you said Dipti, LIC, so LIC, I consider it is as a product. आपने PPF कहा वो प्रोडक्ट है, आपने गोल्ड कहा वो प्रोडक्ट है, तो ये सारे प्रोडक्ट है।
So I'm not talking about right or wrong. तो जो मेरे लिए wrong है आपके लिए right हो सकता है, आपके लिए right है मेरे लिए wrong हो सकता है. But what my point is कि आपका plan पहले तैयार होना चाहिए. When you have a plan ready, then you can when you have a destination ready, तो आप plan कर सकते हो कि भाई मुझे ये journey by road जाना है, by train जाना है, by flight जाना है. So you can plan your journey if you have a destination in place. अगर वो planning है तो अच्छा होता है. So I'm just because kids are not there, so I'm just guiding more on a different part जो आज का agenda नहीं था, but I'm just sharing all those things कि प्लानिंग पहले होता है, प्रोडक्ट उसके बाद में डिसाइड होता है. जैसे भारती ने और स्नेहल ने कहा इक्विटीज शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं. अगर आपका टाइम दूर का है, यू डोंट नीड योर मनी इन कपल ऑफ मंथ्स और इयर्स. अगर आपका टाइम दूर है तो आप शेयर्स डेफिनेटली चॉइस कर सकते हो. देयर आर पीपल हु इन्वेस्ट इन शेयर्स फॉर अ शॉर्टर टाइम आल्सो, बट इन माय फिलॉसफी I consider FD is for short time and shares for a long time. This is what I generally advise. So let's go back to the PPT and let's go ahead. So why do we need to save? In the time of crisis, we will need extra fund. तो उसके लिए हमें सेव करना चाहिए. And inflation नाम का राक्षस हमारे पैसे को दिन ब दिन वैल्यू घटा रहा है. अब अच्छा, one more thing, why we need to worry about or think about inflation, because ये साल मेरी सैलरी मान लो 1 लाख रुपया पर मंथ है और अगले साल भी मेरी सैलरी 1 लाख ही है. there is no difference in my salary. So what is the real value of my salary next year? Come again, Dipti. It is decrease, like उसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है. ऑफ कोर्स अगर 1 लाख रुपया कैलकुलेशन के लिए बड़ा हो जाता है तो लेट्स कंसीडर एज 100 रुपी. माय मंथली सैलरी फॉर दिस ईयर इज 100 रुपी पर मंथ एंड नेक्स्ट ईयर इज आल्सो 100 रुपी. तो वैल्यू ऑफ दैट मनी गोज डाउन, राइट? यस जिगर भाई. यस सर. ओके, सो वैल्यू कैसे डाउन हो गया? क्योंकि मार्केट का इन्फ्लेशन बढ़ गया, यानी महंगाई बढ़ गई. जो 100 रुपए में लास्ट ईयर जो चीज मिलती थी आज वो 110 रुपए में मिल रही है. इफ आई कंसीडर 8 रुपी 8% एज ए इन्फ्लेशन, सो माय सैलरी डिक्रीज्ड बाय 8%. तो जो चीज मुझे 100 रुपए में मेरा घर चलता था, जितना मैं चीजें ले सकता था, उसके लिए मुझे 108 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं. तो अगर दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर मेरा सैलरी नहीं बढ़ा है तो my value of that money went down to 92 rupees. So of course I'm getting in my bank 100 rupee, but value of that money went down to 92 rupees. So because of that gap, we need to save money, and save or invest, there is a difference. Save का definition में ये बोलता हूँ where you are not putting any effort. कि मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने इतने खर्च किए, अब मेरे पास इतने बचे हैं. जो बच गया ऑटोमेटिक बच गया, दैट इज कॉल्ड सेविंग. वी हैवंट पुट एनी एफर्ट. एंड इन्वेस्टमेंट व्हिच आई प्रीफर, आई डू नॉट मेंशन द टर्म सेविंग in front of my clients. I always mention investment. The reason behind investment is you need to take efforts. So when you will take effort, you will calculate your income, you will calculate your needs, you will calculate all your aspirational needs, you will calculate your future requirement, everything you will calculate, and then you will decide कि मुझे गोल्ड में डालना है, मुझे प्रॉपर्टी में पैसा लगाना है, मुझे शेयर्स में लगाना है, मुझे किस प्रोडक्ट में पैसा लगाना है. उसके बाद आप डिसाइड कर पाओगे. सो मुझे कुछ ना कुछ पैसा ऐसा भी लगाना पड़ेगा जो मार्केट में जो मेरा ईयरली जो इन्फ्लेशन है उससे अगर ऊपर नहीं होगा मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये गैप कभी भी भरेगा नहीं. जो इन्फ्लेशन का गैप, व्हाट आई जस्ट एक्सप्लेन यू, देयर इज अ गैप. जो गैप है वो कभी भी भरेगा नहीं. इफ मैं मेरा इन्वेस्टमेंट में पूरा एफडी में करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो एफडी में व्हाट आई एम गेटिंग नाउअडेज, जिगर भाई, स्नेहल, भारती, 7.5 है. 5.2% बैंक है. 5.4 is max. 5.4. So average
जनरल 6%, अगर सीनियर सिटीजन है तो शायद 6.5 और 7%. अगर मैं 6% को एवरेज मान के चलता हूँ, एंड इन्फ्लेशन ऑफ माय सिटी, जो देश का जो इन्फ्लेशन होता है वो 4-4.5% दिखाती है गवर्नमेंट, लेकिन जो सिटी में मैं रहता हूँ वहां का इन्फ्लेशन, बिकॉज इट इज अ बॉम्बे, तो यहाँ पर थोड़ा चीजें ज्यादा महंगी होती हैं. ट्रांसपोर्ट महंगा है और बहुत सारी चीजें, स्कूल बहुत महंगे हैं आज की तारीख में. तो यहाँ का इन्फ्लेशन 8 रुपया है, तो आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगर 6% है, आपका इन्फ्लेशन 8% है. देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2%, एंड दैट 2% गैप विल नेवर फुलफिल दैट गैप. तो आपको कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा करना पड़ेगा जो आपको 8 या 8 से ज्यादा रिटर्न देता हो. So if you are investing 100 rupee, then you need to diversify your 100 rupee in different pockets. For example, कुछ पैसा आपने FD में लगाया because you need security as well to create a emergency fund. कुछ पैसा आपने म्यूचुअल फंड में लगाया to get a better return. कुछ पैसा आपने PPF में लगाया कि मुझे लंबे समय के लिए फिक्स रिटर्न मिल रहा है. कुछ पैसा आपने इक्विटी यानी शेयर्स में लगाया. तो ये सारी चीजें आपको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी पड़ेंगी, एंड यू नीड टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो. सो ये थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान दिया मैंने, बिकॉज ये इट वाज नॉट प्लान, बिकॉज ऑफ द ऑडियंस आर किड्स नहीं है, आप सब अडल्ट हो, तो आपको ये बताना मैंने जरूरी समझा मुझे. सो नाउ लेट्स गो बैक टू पीपीटी. So where do we invest? हम लोग ने ये बात ऑलरेडी कर ली. कोई सवाल है क्या आपका? प्लीज गो अहेड विद द क्वेश्चन इफ यू हैव. जिगर भाई, यू आस्क एनीथिंग? No, sir. Okay. Now, what we call borrowing in financial language? हेलो, फाइनेंस की लैंग्वेज में बोरोइंग को क्या कहते हैं? लोन. लोन. राइट, लोन. राइट. अब मेरा सवाल आप सभी से ये है, when we need to borrow? When investing in business. Okay, where we want to Maybe, invest in or business. we are taking new house या कुछ ले रहे हो, कुछ प्रॉपर्टी खरीद रहे हो. Okay. Yeah, Bharti, any opinion? जिगर भाई? Just to fulfill your needs if your income is insufficient. Okay. When your income is insufficient and there is a need, you might need to borrow, right? Then only you should borrow. Then only you should borrow. Okay. Not Okay. for wants. Okay. Great. Yes, Nehal, your opinion? That's it. Mostly everything is covered. Okay. And there is a consecutive question: is borrowing good or bad? For need it is good, for wants it is bad. Yes. Yes. It's Yes. good. Yeah, for needs it's good. Like Okay. For business it is good. for business, Right. Not for business purpose or property purpose, it's somewhere good. Yes. And yes, when yes. you know your income is like you explained us now Mhm. about the income savings and all that things. Mhm. So we know that much you have to then pay the interest and stuff. So when you know you can repay the borrowings properly, the earning of income which you are earning, so obviously you can borrow it. Okay. Can I say that is the only way? Means you need to borrow only then and then if you can, pay. Yes, or because it's no use, no, if you cannot repay the loan or interest on time, so you'll be again you'll borrowing something else, and then the debt will be recurring and recurring. Right. So
it depends upon your wants. Like you did not have wants नहीं थे, तो भी ले लिया, and now you are not able to repay it. So no use of borrowing. But you are sure short के हाँ मुझे चाहिए and I can repay it in so much period of time. So definitely borrow and have a success in whatever you are doing. So if you can calculate properly and you can repay, then it is good. Otherwise, it is bad. Can I say that? Yes, you can say that. Okay. But then there are that also, if there is a what to say depriving period, like abhi lockdown aa gaya, COVID situation or something like that. So wo effect also is there. Both there is both pro and cons, both are there for borrowing. Right. Yeah, So it depends on person to person. Snehal, Bharti, you want to add anything? Okay. So one of my role model, you can say, Robert Kiyosaki, who wrote a book called Rich Dad Poor Dad, and he wrote many good books in the area of finance. And if you want to know more about finance and detail about finance, that is the one of the kind of Bible and kind of the Dharma Granth of financial industry. So you can take down that name of that book, Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki. You can go on and read that book. तो वो बुक में, वो किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ऐसा कहते हैं कि अगर आपको रिच नहीं बनना है बट वेल्दी बनना है, then you need to understand taxes and loans. अगर आप टैक्स को समझ लिए, अगर आप बोरोइंग यानी लोन्स को समझ लिए, अगर ये दो कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेते हैं बहुत ठीक से, तो रिच बनना तो बहुत दूर की बात है. मींस रिच बनने का सोचना ही नहीं चाहिए, हमको वेल्दी बनने का सोचना चाहिए. तो रिच एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिच एंड वेल्दी. तो वो बहुत अपनी बुक किताब में अक्सर कहते हैं कि रिच तो ठीक है, लेकिन वेल्दी बनने वाले लोगों की सोच अलग होती है. दे थिंक फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. अब क्यों वेल्दी बनने की बात कर रहे हैं, क्यों रिच बनने की बात कर रहे हैं, वो उसके लिए किताब पढ़नी पड़ेगी. सो बेसिकली लोन्स गुड और बैड ऐसा होता है. एग्जैक्टली आई सेकंड योर पॉइंट दीप्ति, कि अगर आप उसको ठीक से समझ पाते हो, इफ यू कैन मैनेज दैट बोरोइंग्स देन इट इज गुड. इफ यू कैंट मैनेज दैट बोरोइंग्स देन एक बोरोइंग को निपटाने के लिए दूसरा बोरोइंग, दूसरे लोन को निपटाने के लिए तीसरा बोरोइंग, दैट इज अ विशियस सर्कल. वो चलता रहता है एंड देयर इज नो एंड. वो उस टाइप का loans are bad loan. वो is not a good thing to do it. Now let's go a little bit how this earning, spending and saving works. ये interrelated है. सारी चीजें एक दूसरे से interrelated है कि अगर आपकी अर्निंग सही है तो आपका स्पेंडिंग सही होगा. अगर आप स्मार्ट स्पेंडिंग करते हो तो आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट सही होगा. और इफ ये सारी चीजें अगर सही हैं तो देन चेहरे पे मुस्कान होगी हर बार. सो हैप्पीनेस कम्स इफ यू मेंटेन दिस ट्रायंगल प्रॉपर्ली. तो यहाँ पर एक ग्राफ मैंने तय किया है. दैट इज द फर्स्ट सिनेरियो. इफ योर अर्निंग गोज अप, और ये बहुत ऑब्वियस है कि आपका स्पेंडिंग भी बढ़ेगा. जब मैं 10,000 रुपया कमाता था तब मैं टेलर के पास जाके कपड़े सिलाता था. अब मैं 10,000 से मेरा इनकम अचानक आहिस्ता आहिस्ता 50,000 हो गया है. तो व्हाट आई बाय? ब्रांडेड क्लोथ्स. तो ब्रांड के नीचे देन मेरा सोच जाता ही नहीं है. सो दिस इज अगेन आई एम नॉट सेइंग राइट और रॉन्ग, बट सब्सिक्वेंटली होता ये है कि व्हेन माय अर्निंग गोज अप माय स्पेंडिंग आल्सो गोज अप. ऑटोमेटिकली सडनली मेरे नीड्स और वेंट्स के लिस्ट में चेंज आ जाता है. हम घर पे ज्यादा खाना खाते थे, थोड़ा थोड़ा सैलरी और इनकम बढ़ने लगी तो आहिस्ता आहिस्ता हम होटल, फिर छोटे होटल के बाद बड़ी होटल. तो अलग अलग हमारी नीड्स और वांट्स अपने आप बदलती गई.
हमारे पास 2 या 3 पेयर शूज हुआ करते थे ज्यादा से ज्यादा। अब ऐसा होता है कि वो एक कबाट होता है हमारे घरों पे, देयर इज अ कबर्ड फॉर शूज सेपरेटली। तो और इवन ज्वेलरी आल्सो फॉर फीमेल, अगेन दैट इज नॉट राइट और रॉन्ग, आई एम नॉट कमेंटिंग बट कहने का ये मतलब है कि अर्निंग अगर बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली स्पेंडिंग भी बढ़ता है। तो इट इज राइट और रॉन्ग डिपेंड ऑन द वे यू आर budgeting your home finance. Second scenario, if saving is possible if earning goes up and spending is less. तो ये इसको हम लोग थियरी में तो समझ लिए, लेकिन अब ये ग्राफ के हिसाब से अगर हमारा अर्निंग बढ़ता है तो स्पेंडिंग अगर नहीं बढ़ेगा ना तो ही सेविंग की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये मैं बच्चों को इसलिए बताना चाहता था बिकॉज देयर इज अ एक्सरसाइज इन्वॉल्व्ड। सो थर्ड सिनेरियो ऐसा है कि इफ माय अर्निंग इज लेस बट माय स्पेंडिंग इज मोर, देन दिस इज अ वर्स्ट सिनेरियो कि मेरा सेविंग तो कुछ नहीं होगा, मुझे घर चलाने के लिए या मेरी नीड्स पूरी करने के लिए मुझे बोरो करना पड़ेगा, और then I need to work more hard on the earning part and save spending part, spending को कम करें और earning को कैसे बढ़ाएं. So that's a very hard part to do. So I pray कि किसी का फैमिली ये सिनेरियो में कभी भी नहीं आना चाहिए. So ideal होगा सिनेरियो नंबर 2, बट ये सिनेरियो वर्स्ट होता है, ये नहीं आना चाहिए. What is more important, earning, spending, saving or borrowing? I think last couple of question, ये one of the final question है. What is more important out of these 4? Earning. Earning, okay. Yes, Nehal, what did you say? Everything. Everything, okay. All Bharti? Yes, yes, everything is important. Everything is important. Bharti, are you there? Can you hear me? Yes, sir. Everything. Okay. Everything is important. Yes, everything is important. You need to maintain. तो सही है. One of the financial guru दुनिया में जो है वो ऐसा कहते हैं कि the best investment you can make is an investment in yourself. The more you learn, more you will earn. जो आज हम लोग ने ये 4-5 लोगों ने जो हम लोग ने जो शेयरिंग किया, आई होप कि कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको नई पता चली होंगी. कुछ बातें आपको ऐसा लगा होगा कि ये मैंने पहले सुना हुआ है. दिस इज न्यू थिंग व्हाट आई हैव हर्ड एंड लर्न. तो दैट वाज द इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. सो व्हेन यू लर्न मोर यू कैन अर्न मोर. Okay, the most important part I wanted to share with the kids is budgeting and cash flow. अगर आपके घरों में अगर ये चीज नहीं होती है तो you also can apply. Budgeting is a pre-event and cash flow is post-event. For example, कि आपको आपका अक्टूबर महीने का बजटिंग करना है तो आप एंड ऑफ द सितंबर में करेंगे कि मेरा ये मंथली इनकम है, मैं ये महीने में यहाँ पर स्पेंड करूंगा, यहाँ पर स्पेंड करूंगी. तो आप पहले से बजट बना लो. एंड आस्क ग्रोसरी आपको पता होता है. अगर कोई ऐसे फिक्स और वेरिएबल एक्सपेंसेस है तो आपको पता है. आपके फैमिली मेंबर से बातचीत करो. एट द एंड ऑफ द मनी, दिस इज द आर्ट ऑफ मेकिंग बजट. मैंने एक बार एक एक्सपर्ट को सवाल पूछा था, व्हाट इज द राइट एज टू इंट्रोड्यूस मनी टू द किड्स. दे सेड दैट्स द फर्स्ट टाइम व्हेन दे आस्क something in the market, toffee, toy or balloon, that's the right time to introduce money. कुछ लोगों को ऐसा लगता है, ये भी एक मिथ है हमारे सोसाइटी में, कि बच्चों को क्या पता चलता है, उनको क्यों पैसों में इन्वॉल्व करना चाहिए. बट अगर आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे फ्यूचर में पैसों की चीजों को अच्छे से ना समझे एंड दे स्ट्रगल, तो आपको बच्चों को छोटी एज से इन्वॉल्व करना चाहिए. डे टू डे के जो आपके जो घरों के जो काम है उसमें जहां जहां पैसा इस्तेमाल होता है वो आपको बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए. व्हेन दे कम टू द मार्केट विथ यू, जो आप सब्जी खरीदते हैं, जो आप सामान खरीदते हैं, उनके लिए भी जो अगर कुछ टॉयज खरीदते हैं तो आपको उसका प्राइसिंग
और उसका वैल्यू, ये दो अलग अलग चीजें हैं. प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड वैल्यू ऑफ द मनी, these are the two different concept all together. तो उनको समझाना चाहिए, उनको बताना चाहिए और उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए. तो जब उनको इंट्रोड्यूस करेंगे, उनके कुछ सवाल आएंगे, आप उनको आंसर करेंगे. दैट्स द वे वी लर्न टुगेदर. बजटिंग, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मंथ के सर ये नहीं समझा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यूएशन, यानी समझा नहीं. ओके, अभी अगर ये पेन का प्राइस अगर मार्केट में मैं खरीदने जाता हूं तो प्राइस इज 20, जो वैल्यू है वो. बट अगर ये 20 रुपीज मेरा हर 2 दिन में खर्च होता है तो, हेलो या जिगर भाई, आपकी आवाज चली गई जिगर भाई. सो प्राइस और वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर मैं, यस सर, गो ऑन. हाँ, सो प्राइस और वैल्यू की बात, हाँ यस जिगर भाई. तो अगर बच्चों को क्यों इसलिए समझाना होता है, क्योंकि अगर कोई महंगी चीज बार बार खराब हो रही है, टूट रही है, तो वो हमको बहुत ज्यादा पिंच करेगा. तो सो वॉट एवर इज द प्रोडक्ट व्हाट वी आर बाइंग फॉर द हाउस और फॉर द किड्स और फॉर एनीथिंग, अगर उसकी वैल्यू, अगर उसकी ड्यूरेबिलिटी है कि ये एक पेन मुझे 1 साल चल सकती है या 3 महीना चल सकती है, तो ये 20 रुपीज की वैल्यू इज फॉर 3 months. अगर ये मुझे 3 महीने में अगर मुझे 10 पेन खरीदना पड़ रहा है तो आई एम स्पेंडिंग मोर ऑन द वैल्यू. सो आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट. सो अगर मान लो कि आपका एक मोबाइल गिर गया, तो मोबाइल खरीदने में तो सिर्फ आपको मान लो 10,000 रुपया लगेंगे दोबारा, लेकिन उसका जो वैल्यू है उसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो जो लॉस होता है. सो वैल्यू 10,000 नहीं है, फोन की वैल्यू बहुत ज्यादा है आपके लिए. सो देयर इज अ प्राइस एंड देयर इज अ वैल्यू, इसका डिफरेंस होता है. सो जब भी आप कुछ सामान खरीदते हो, अगर आपके पास ऑलरेडी एक सामान सेम कार पड़ी है और बच्चा अगेन if children is saying कि I want to buy the same car again, then there is not a value buying. अगर आपको सेम टू सेम चीज अगर आपको गिफ्ट में आती है तो यू डोंट हैव चॉइस. बट अगर आपको कुछ खरीदना है तो कुछ आप वैल्यू एडिशन खरीदो तो अच्छा है. अभी इसका दूसरा एग्जांपल देता हूं. आप एक दुकान में एक चीज खरीदने के लिए गए एंड वो दुकान का वो प्रोडक्ट बहुत खराब आया, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट प्रोडक्ट. तो आप क्या बोलोगे कि मुझे मेरे पैसे की वैल्यू नहीं मिली, राइट. सो वैल्यू फॉर प्रोडक्ट, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं था. आपने एक कंपनी के पास गए, आपका ट्रैवल प्लान किया, आपने 1 लाख रुपया भरे और वो 10 दिन का ट्रैवल का प्लान आपने उनसे खरीदा. लेकिन आप जब ट्रैवल पे गए और वो आपके ट्रैवल का कुछ मजा नहीं आया, तो आप क्या कहोगे, यार ये पैसा 1 लाख लिया और वैल्यू फॉर मनी नहीं था. तो जब आप बोलोगे वैल्यू फॉर मनी नहीं था, उसका मतलब ये हुआ कि जब आप 1 लाख रुपया खर्च करते हो तो आपको 1 लाख की वैल्यू मिलनी चाहिए, बराबर. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू. तो जब आप बजट करते हो तो बजट मंथ के एंड भी लास्ट वीक में करना चाहिए. फैमिली के सारे मेंबर बैठो, टॉक मनी इन द फैमिली. ये मेरा एक मंत्र है, मैं सेमिनार में अक्सर देता हूँ. टॉक मनी इन द फैमिली. घर में पैसों की बात करो. जनरली हमको डर लगता है कि यार क्यों पैसों की बात करना, इसकी क्या जरूरत है. लेकिन अगर आप घर में पैसों की बात करोगे तो क्राइसिस कम आएंगे. दे ऑल्सो नो द वैल्यू. अगर कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ अलग अननेसेसरी चीजों पे खर्च करते हैं, तो अगर मेरी वाइफ इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दैट मंथली बजट, तो वो बोलेगी इसमें खर्च करने की जरूरत नहीं है, हम लोग मैनेज कर लेंगे. सो यू कैन सेव मनी. अगर पूरा घर साथ में बैठता है तो मंथ के एंड में बैठिए, नेक्स्ट मंथ का प्लान कीजिए. ऐसा 3-4 महीना करेंगे, बच्चों के अंदर एक बजट बनाने की हैबिट बनेगी. सो व्हाट यू आर गिविंग देम आउट ऑफ दिस एक्सरसाइज, यू आर गिविंग देम अ गुड कल्चर ऑफ मेकिंग द बजट. एंड जिस हिसाब से बजट है उसी हिसाब से डिसिप्लिन भी मेंटेन होगा. सो यू आर हार्वेस्टिंग अ कल्चर in your family. So budget is a pre-event thing, cash flow is a post-event. 1 महीना चला गया
और बाद में आपने जो हिसाब किताब किया, दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है, मैं बच्चों के पर्सपेक्टिव से मैंने कई पूरा बनाया था, बट लेट्स वी आल्सो कैन डू। यस यस sir, can I share one activity that we do with our kids? Come again. Can I share one activity we do with our kids? आपकी आवाज टूट के आ रही है। स्नेहल, Hello, can you hear me now? हाँ हाँ बोलिए। हाँ, मैं एक एक्टिविटी शेयर कर सकती हूँ जो मैं मेरे बेबी के साथ यहाँ पे करती हूँ घर पे। यस यस यस, प्लीज 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 प्लीज, गुड गुड, प्लीज शेयर। एक्चुअली ये स्टार्टेड ऑन एक्टिविटी के जब भी वो अभी बच्चे लोग को ये सब गेम्स और वॉच करने का, कोई राइम्स वगैरह देखने का मोबाइल पे या इस पे बहुत इंटरेस्ट रहता है। So whenever he used to ask me that, I used to tell him, you have to write one page. Snehal, your voice is breaking very much. Hello. Hello. Better. आपके आवाज आ रही है स्नेहल, बट बहुत टूट टूट के आ रही है, सो बहुत क्लैरिटी नहीं मिल रही है, एग्जैक्ट वो चीज नहीं आप जो बताना चाहते हो। अभी बेटर है? पहले से बेटर है, गो ऑन। Can you just switch off your video and share? हाँ अभी बोलिए, शायद नेटवर्क में क्या। हाँ अभी बोलो। Hello. Yes, much better. Now you can hear me? Yes, much better. So we used to give him this activity that you write one page, you earn a coin, maybe a 1 rupee or 2 rupee coin for the page. Or if you read a page, you'll get a 1 rupee or 2 rupee coin, and you can spend it for using watching your videos or playing on mobile or something. So it was worth one rupee. If you get, you can spend 5 minutes on the mobile or computer that way. And when you get 2 rupees or 3 rupees, you have to think of how much you have to spend tomorrow. So he'll have to save in his piggy whatever he gets today for tomorrow. Wow. So that has inculcated one habit in him, that whatever he gets, he has to save and then utilize it for his needs. I mean, for him, watching a video or something is also a need. So what age he is? He is 3.5 years old. Wow, 3.5, and he understands this. Yeah. So we on this sharing, I would want to make a point that sometimes we underestimate कि बच्चों को इकोनॉमिक्स क्या पता चलेगा. So we generally we adult underestimate their power. अगर 3.5 साल का बच्चा ये जो चीज जो एक्टिविटी कर रहा है, but basically what he is into, वो इकोनॉमिक्स समझ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, कि अगर मुझे 5 मिनट या 10 मिनट या आधा घंटा मोबाइल का स्क्रीन टाइम बाय करना है, तो आई नीड टू स्पेंड 3 or 4 रुपी और 5 रुपी टू माय पेरेंट. So what exactly he is doing, he is understanding that economics, buying, selling. So good, keep on doing, and आपको miracles पता चलेंगे फ्यूचर में. ओके, सो यहाँ पर ये एक एक्सरसाइज है, हम अभी एक्सरसाइज करेंगे नहीं बिकॉज अभी टाइम खत्म होने को आ रहा है. सो हम ये एक्सरसाइज आप अपने बच्चों के साथ करिए कि एक संडे को उनको घर का कारोबार चलाने दीजिए. आप उनको जो भी 1000 रुपी है, तो घर का कारोबार मीन्स टुडे दे आर कैशियर, और मे बी यू कैन से कि आपने ये 1000 रुपये अर्न किए और दिस इज अ कैश इन योर हैंड टुडे. आज का पूरे दिन का जो भी एक्सपेंस होगा यू विल मैनेज इट. तो यू आर अ होम फाइनेंसर फॉर एंटायर डे. अब वो लिखता जाएगा, दे विल मेक अ नोट वेयर आई विल स्पेंड और वेयर आई हैव, कहाँ मैंने कितना खर्च किया, उसके बाद में मैंने कुछ बचाया क्या. तो एक बार उनको खुद को करने दीजिए, एंड वॉट एवर दे डू इट, शाम को जब वापस एनालिसिस करने बैठिए उनके साथ एंड टॉक टू देम, और उनको ये बताइए कि अगर मान लो हमने ये चीज आपने संडे को खरीदी, इसकी जगह पे हमने ये इसका ऑल्टरनेटिव अगर खरीदा होता तो हम 10 रुपए बचा सकते थे, इसकी जगह पे हमने ये किया होता तो ये अच्छा होता.
या उतना ही वैल्यू, उतना ही प्राइस खरीद के हमको ज्यादा सामान मिलता। तो ये सारी चीजों से दे विल अंडरस्टैंड द बार्गेनिंग ऑल्सो। बार्गेनिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्ट इन टूडेज वर्ल्ड। तो ये एक्सरसाइज आप बच्चों के साथ जरूर कीजिए, और कभी कभी उनको घर का कारोबार संभालने दीजिए। जस्ट बी विद देम। जो नोट लिख रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको हैंडल मत कीजिए। डोंट बी अ प्रिंसिपल और टीचर ऑल द टाइम, बट उनको करने दीजिए। मेक देम, अलाउ देम टू मेक अ मिस्टेक, एंड देन यू फैसिलिटेट। यू डू नॉट हैंडल, और आप उसको रेडीमेड बना के ना देकर उसको मिस्टेक करने दीजिए, एंड देन डू द एनालिसिस। इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग आउट टू द मिस्टेक्स, लेट्स डू द एनालिसिस। So there is a difference. Analysis करो तो उसमें they will learn a lot. So now we are reaching towards the end of this session. So तनिष्का, आपने सबको मेल कर दिया क्या? हाँ कर रही हूँ। हाँ, सबको कर दीजिए, एंड वो ईमेल में मेरा नंबर लिख देना। ओके सर। ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर लिख देना, ताकि वो वर्कशीट के रिलेटेड अगर किसी भी पेरेंट को कोई सवाल होगा तो दे कैन आस्क मी। सो हाँ, ओके। सो पेरेंट, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस सेशन। सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, प्लीज, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन टाइम, सो यू आस्क क्वेश्चन, you can ask question, whatever question you have. Sir, how much we should really worry about the inflation? Because if I see my last 20 years, inflation जितना बड़ा है उससे तो 10 गुना मेरा income बढ़ा है. But we are always focusing on the inflation part. Instead of that, we should focus on income part more. मैं 20 साल पहले आलू खरीद रहा था, आज आलू का inflation मैं देखूं, या फिर my household need inflation बढ़ा है, I understand, but my income is increasing way ahead than my inflation. So this is a good example. ये क्या होता है कि your focus, अगर कुछ, why there is a means, why rich is rich and poor is poor, ये gap दिन ब दिन बढ़ता क्यों है? Because कि you can balance, but there are many people who cannot balance. जैसे शुरू में आपने कहा कि यार इतना सारा खर्चा हो जाता है कि सेविंग के लिए पैसा नहीं बचता है. There are many families like this. I have means experienced कि both husband and wife are working, both are chartered accountant, they have a 2 lakh monthly income. Still at the end of the month they do not have no money for other things. So हर एक व्यक्ति का spending habits अलग है. अब now अभी टॉपिक निकला है तो there is one more question about credit card. अब क्रेडिट कार्ड का ऐसा है कि अगर आपने अच्छे से इस्तेमाल किया तो ठीक है, अदरवाइज एक क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने के लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड, दूसरा क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने के लिए तीसरा क्रेडिट कार्ड, एंड दिस इज अ विशियस सर्कल. आई हैव अ लॉट्स ऑफ स्टोरीज कि लोग यंग एज में क्रेडिट कार्ड के चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि चीजें आसान है, लोन लेना आसान है, क्रेडिट कार्ड लेना आसान है, मोबाइल ले लिया तो चलो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर लिया. लेकिन वही वापस आता है प्राइस और वैल्यू की बात. आपने 10,000 का मोबाइल आज खरीदा, लेकिन जब आप क्रेडिट कार्ड से पे करते हो तो वो 10,000 का मोबाइल आपको 15,000 में या 18,000 में पड़ता है. तो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट? तब मार्केट वैल्यू प्रोडक्ट की हो जाती है 7,000 8,000. सो हैबिट्स लोगों की अगर सही होंगी, इनकम बढ़ती है, अच्छा है, बढ़ना ही चाहिए. हमें डिफरेंट सोर्सेज ढूंढने चाहिए. जितने भी इनकम के मैंने सोर्सेज बताए, तो अगर आपका बिजनेस इनकम है तो आप पैसिव इनकम में क्या कर सकते हो वो भी हमें सोचना चाहिए. कोई रेंटल इनकम है, वेरी गुड, यू नीड टू प्लान फॉर रेंटल इनकम, क्योंकि वो पैसिव इनकम है. आप काम करो ना करो, 10 दिन छुट्टी पे चले जाओ, बट वो रेंट तो चलता रहेगा. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने इनकम ग्रोथ के लिए कर सकते हो. तो वो पैसिव एक्टिव इनकम के साथ साथ आपका पैरेलल एंड देन स्लोली पैसिव इनकम में कन्वर्ट होना चाहिए. वॉट एवर यू आर अर्निंग वो पैसिव इनकम में क्रिएट होगा, तो आपका सेविंग बढ़ेगा और इन्फ्लेशन को बीट आराम से हो जाएगा. यू नो नीड टू वरी अबाउट दोस थिंग्स. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि पेंशन, जो रिटायरमेंट के बाद अगर जो हमें जो खर्चा होगा उसको मीट करने के लिए, क्योंकि अभी लोगों की एज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है बिकॉज ऑफ ऑल दिस मेडिकल एडवांस रिसर्च एंड ऑल,
और मेरा इनकम उसके बाद बंद हो जाएगा। और भारत पूरे में 3% लोगों का रेशियो ऐसा है कि ओनली 3% आर पीपल जिन्होंने अच्छे से रिटायरमेंट प्लान किया है। अगर माय इनकम स्टॉप्स एट 55 and my age is 85, then this 30 years and this question about inflation you will face at that point in time. Jigar bhai, I think I have answered and satisfied your. Yes sir. Okay. So हमें कल के लिए इसलिए प्लान करना चाहिए, कल के लिए आज सोचो, that is my tagline. I always say people कल के लिए आज सोचो. The reason is that कि आज मेरा इनकम अच्छा है, मेरा एक्सपेंस मैं सब कुछ सही से कर सकता हूँ, बट आई नीड टू फोकस ऑल अदर एरियाज ऑल्सो. सो भारती, स्नेहल, दीप्ति, जिगर भाई, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? सर वन मोर क्वेश्चन प्लीज गो अहेड. सर टुडे इन द मार्केट देयर इज ट्रेंड कि हम लोग टर्म प्लान ले लेवे. बराबर है. टर्म प्लान अभी 100 इयर्स का मिलता है. बराबर. तो सम पीपल से मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करूं, टर्म प्लान लेके रख दूं, फैमिली को तो पैसा मिल जाएगा. तो देयर इज ऑलवेज सम कंफ्यूजन बिटवीन दिस. इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट, टर्म प्लान, क्योंकि अभी 99 इयर्स के मिल रहे हैं. सो लिविंग बियॉन्ड 99 इज वेरी रेयर थिंग. अच्छा, सो नाउ यू नीड टू कैलकुलेट योर फ्यूचर वैल्यू. अच्छा, मैं 40 इयर्स का हूँ और मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं अज्यूम करता हूँ कि आई विल लिव टिल 80 ईयर. बराबर है. तो 80 ईयर में मेरे फैमिली को मैं कितना पैसा दूंगा तो वो इनफ फंड कहा जाएगा? What is that amount which you can consider or your family can consider कि this is the enough amount आज से 40 साल के बाद में? फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़. ओके, हम एक रैंडम एग्जाम्पल लेते हैं. अगर 10 crore is the right amount and am I buying 10 crore right now? Will I be able to pay for that premium? और वो प्रीमियम में कितने सालों तक पे करूंगा? मैं 10 साल में फ्री होना चाहता हूं और मैं 15 साल में जब मेरा इनकम खत्म हो जाएगा, आई डोंट वांट टू पे फ्रॉम माय अदर इन्वेस्टमेंट. आई डोंट वांट माय लायबिलिटी आफ्टर 55. I do not want liability after 55. Right. So there are lots of things. टर्म प्लान लेना चाहिए, लेकिन मैं लोगों को ये कहता हूं कि आप उतना ही टर्म प्लान लीजिए जितना आप को 70 इयर्स तक का या 75 इयर्स तक के फंड की जरूरत है. फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 करोड़ लेते हो टर्म प्लान और आपको लगता है कि मेरे पास अभी 20 साल है, 20 साल में मैं 10 करोड़ बना लूंगा, देन यू डोंट नीड. आप तो वो 10 करोड़ भी छोड़ के जाने वाले हैं ना. राइट. तो वो 10 करोड़ का आप टर्म प्लान लेने की जरूरत, यू नो नीड टू स्पेंड राइट नाउ फॉर दैट वैल्यू, क्योंकि आप वो इनकम अर्न करके भी तो बचाने वाले हो ना. राइट. तो वो भी एक सिनारियो है, पॉइंट है, उसको कंसीडर करना चाहिए. सो ये वर्कशीट में मैं क्या है ना, वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ. एक्चुअली वो भारती मैडम भी चले गए, बट एनीवेज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट वर्कशीट, you can ask me later on. My mobile number will be there in your email. So worksheet में ऐसा है कि मैंने एक रोल बनाया है that you are a party organizer, you are a event manager. अगर ये बच्चे, आप फैमिली में किसी को भी शेयर करो, अगर आपके बच्चे 8 साल से छोटे हैं, लेट्स ट्राई करिए कि वो कर सकते हैं. अगर नहीं कर सकते, कोई भी फैमिली में 8 साल से बड़े हैं, if they want to do it alone or if they want to do it in a partnership way, let them do it. पार्टी ऑर्गेनाइजर है, and the entire worksheet is free. You decide what is the event, you decide what is the budget, you decide whatever is the theme, you decide location, and आप वो सारे क्वेश्चन one by one अगर भरते जाएंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. एंड उसमें मैंने ये कुछ सवाल भी दिए हैं, तो जो भी वो एक्सरसाइज करता है, they can ask those questions to your own self and they learn a lot. अगर वो सवाल जवाब आप आंसर कर सकते हैं, कीजिए. if you need my support, I am always there. My number will be there, so you can contact me whenever. And that worksheet is really helpful. So please try कि आप वो worksheet का इस्तेमाल कर सकें. Big thank you to Asmakam, Ashita. Thank you so much for giving me this opportunity.
and thank you everyone who joined, who could not join. So thanks to Dipti, Snehal, Jigarbai to stay till end. Thank you so much. Thank you, Paresh. It was a very sir. nice session. Thank you Yes. so much. Thank you. So मैं मेरा मोबाइल नंबर, thank you Ashita once more. Thank you. No worry. Thank you for being here. या मैं मेरा मोबाइल नंबर चैट में भी लिख देता हूँ, इन केस अगर मेल में तनिष्का भूल गई होगी तो. So in case for that worksheet or anything, any kind of query, if you want to get connected to me, you can.